हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मौलिक जलावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के ये लेक्चर में हमें पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में से प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। इनके आगे हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। अगर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स एक साथ देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। तो फर्स्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। तो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो अपीयरेंस। क्लोरीन गैस का कलर होता है ग्रीनिश येलो। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, क्लोरीन गैस इज पिगेंट स्मेल एंड सफोगेटिंग ऑडर। क्लोरीन गैस जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब अगर एक्सेस अमाउंट में आ गया तो वो एक सफोगेटिंग गैस है। थर्ड प्रॉपर्टीज, क्लोरीन गैस हैवियर देन एयर, बट हाउ मेनी टाइम्स? 2 to 5 times more heavier than air. Now we discuss about chemical properties. Now we discuss about chemical properties, that means chemical reactions of chlorine gas. So first reaction, chlorine reacts with mostly metal and non-metals and forms their chlorides. Reaction number 1, chlorine reacts with metal and non-metal and form their chloride. Their chlorides. Now we discuss about some examples of metal chloride and some examples of non-metal chloride. So first off, we use here sodium metal. If sodium metal reacts with chlorine, it gives sodium chloride. Now balance the reaction. Chlorine 2, here chlorine 1, so multiply by 2. Now sodium 2, here sodium 2. Another example, we use aluminium metal. Aluminium reacts with chlorine, it gives aluminium chloride. Balance the reaction. Chlorine 2, chlorine 3, multiply by 2 and multiply by 3. Now balance the chlorine. 6 and 6. Aluminium 2, aluminium 2. Now third reaction is iron chloride. FeCl3. So when Fe reacts with chlorine, it gives to FeCl3. Balance the reaction. Chlorine 2, chlorine 3, cross multiply 2 and 3, Fe2, Fe2. All the examples are metal chlorides. All the reactions are metal chlorides. Sodium, aluminium and iron are the metals. So all the chlorides we can call metal chlorides. Now we discuss some another examples of non-metal. So first off, non-metal like phosphorus. Phosphorus, that is P4, reacts with chlorine. It gives phosphorus trichloride, and we also discuss about phosphorus pentachloride. In phosphorus pentachloride, amount of chlorine is used in a excess proportion. So now balance the reaction. multiply by
multiply by 4 mole of PCl3. Why? Because phosphorus is 4, here phosphorus is 4. Now balance the chlorine, 4 3s are 12, that is multiply by 6. Second example. So when sulfur reacts with chlorine, it gives sulfur chloride. Balance the reaction, sulfur 8, so we multiply by 4, 4 2s are 8, here chlorine 8, so multiply by 4. These two chlorides are known as non-metal chlorides. So here first property is complete. Chlorine reacts with metal and non-metal, it gives metal chloride and non-metal chlorides. Now second property, chlorine have great affinity towards the hydrogen. क्लोरीन को हाइड्रोजन के प्रति लार्ज अमाउंट में अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है. सो यहां पे लिख सकते हैं हम क्लोरीन हैव great affinity towards hydrogen. When hydrogen and chlorine reacts with each other, it forms hydrogen chloride compound. So when hydrogen and compounds of hydrogen reacts with chlorine, it forms hydrogen chloride. Now taking one example. First off, hydrogen and chlorine reacts. Hydrogen chlorine reacts to each other. It forms two molecules of hydrogen chlorides. Now compound of hydrogen. So here we use hydrogen sulfide. ये कंपाउंड में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, सो इसे हम कहते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, it form also hydrogen chloride, because we can say that chlorine have great affinity towards the hydrogen, not a sulfur. क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ ग्रेट है, यानी ये दोनों के बीच रिएक्शन होके HCl बनेगा जब सल्फर यहां से रिलीज होगा. बैलेंस द रिएक्शन, two molecules of hydrogen chloride. Second property here complete. Now property number 3, reaction towards the ammonia. क्लोरीन की रिएक्शंस अमोनिया के साथ डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस रिएक्शन वी डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. व्हेन वी यूज excess amount of ammonia, and second reaction when we use excess amount of chlorine. In both the reaction we obtain different types of product. First, when excess ammonia reacts with chlorine, it gives
अमोनियम क्लोराइड एंड डाई नाइट्रोजन। चलो रिएक्शंस देख लेते। क्या एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लेना है, NH3 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। देखो इनका प्रपोर्शन कैसा है, एक्सेस प्रपोर्शन ज्यादा है, क्लोरीन कम प्रपोर्शन है। तो व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोनिया इज यूज, वी ऑब्टेन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस डाई नाइट्रोजन गैस। ये था फर्स्ट रिएक्शन। अभी ये सारे रिएक्शंस खुद से बैलेंसिंग करना। नाउ सेकेंड रिएक्शन, व्हेन वी यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोनिया इंस्टेड ऑफ क्लोरीन। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, क्लोरीन को एक्सेस यूज करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड। चलो एक्सेस हमने ले लिया यहां पे क्लोरीन, एमोनिया एज इट इज, Cl2 ये है एक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? एक्सेस दैट इज लार्ज प्रपोर्शन, एक्सेस यानी बहु प्रपोर्शन। तो चलो इसको रिएक्शन किया तब NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विच इज एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ये कैसा है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड, एंड वी ऑब्टेन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की। फर्स्ट ऑफ, वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलो लिख लिया। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, केमिकल प्रॉपर्टीज 4, जिनमें हम अल्कली NaOH के साथ रिएक्शंस देखेंगे। इनके आगे हमने देखा था रिएक्शन विथ अमोनिया, अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अल्कली। तो यहां पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करने हैं। तो व्हेन कोल्ड and dilute NaOH reacts with chlorine, it gives सोडियम क्लोराइड्स। देखो सोडियम क्लोराइड्स हो गया एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट्स देते हैं। मोस्ट टाइम पे MCQ हाइपोक्लोराइट्स कब देते हैं, कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली होना चाहिए। चलिए रिएक्शंस पहले देख लेते हैं। तो रिएक्शंस में तो NaOH लिखना है। NaOH यहां पे कैसा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। रिएक्ट करेंगे इसको क्लोरीन के साथ। तो यहां पे NaCl तो मिलने ही वाला है, सोडियम क्लोराइड NaCl। बट जब कोल्ड अल्कली होता है तब सोडियम हाइपो NaOCl, इनको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट। प्लस यहां पे देखो बाकी क्या बचेगा, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। तो यहां पे थर्ड प्रोडक्ट मिलती है वाटर। तो ये MCQ कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट देता है क्लोरीन। नाउ वी यूज, यहां पे लिख सकते नाउ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। अगर अल्कली हॉट है और कॉन्सेंट्रेट है तब हमें नाउ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH
reacts with chlorine, it gives NaCl तो मिलेगा ही दोनों में, and chlorate, सोडियम क्लोरेट, ये क्लोराइट था OCl माइनस, अभी हम जो दिखाएंगे वो क्लोरेट है। सेम रिएक्शन NaOH प्लस क्लोरीन, ये यहां पे है हॉट एंड कंसंट्रेटेड रिएक्शन, NaCl तो मिलने वाला ही है, NaCl प्लस NaClO3, ClO3 माइनस आयन को कहते हैं क्लोरेट आयन और OCl माइनस को कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। एंड ऑल्सो वी ऑब्टेन वाटर। तो ये दो रिएक्शंस काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछ देते हैं, MCQ में भी पूछ देते हैं कि कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली के साथ क्या होगा प्रोडक्ट, हॉट एंड कंसंट्रेट अल्कली के साथ क्या बनेगा प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी में हम ब्लीचिंग पाउडर सिंथेसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ के व्हाट इज द थियरी, तो व्हेन ड्राई स्कैल्ड लाइम reacts with chlorine gas, it gives bleaching powder। लिख देते हैं ड्राई लाइम reacts with Cl2, it gives bleaching powder, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। चलिए रिएक्शन ऊपर लिखते हैं। तो ड्राई लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्कैल्ड लाइम बोलो या लाइम वाटर बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से, यानी Ca फिर O Cl2, ये एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे लगा दिए, प्लस कैल्शियम प्लस 2 और यहां से क्लोराइड मिलके बनाएंगे CaCl2 और प्लस H2O। ये है रिएक्शन यहां। चलिए रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। बैलेंस करने के लिए यहां 2, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 2, कैल्शियम 2, क्लोरीन 2 2 4, तो यहां पे ले लो, सॉरी 2, टोटल 4 करने हैं। तो ये बैलेंस हुआ रिएक्शन। अभी यहां पे आपको एक पूछते हैं फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, नीचे लिख रहा हूं फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये पूरा रिएक्शन ही है, इनमें से आप ओनली क्लोरीन को हटा दो, बाकी सारे कंपोनेंट्स ब्लीचिंग पाउडर में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं CaOH ट्वाइस, CaOCl ट्वाइस, CaCl2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेट। ये MCQ भी काफी बार पूछ देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन से कंपोनेंट होते हैं, पूरा रिएक्शन होगा बट क्लोरीन नहीं डालना है, क्लोरीन के सिवाय सारा रिएक्शंस। फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट होती है। सिक्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। यहां पे हम हाइड्रोकार्बन्स लेंगे। देखो ये मैंने लिख दिया हाइड्रोकार्बन्स। 11th में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और unsaturated। Saturated that means only single bond, for valency सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होनी चाहिए कार्बन की। अनसेचुरेशन में क्या था, कार्बन की अराउंडिंग
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दोनों के एग्जांपल्स लेते हैं। अगर सैचुरेटेड होगा तब हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, और जब अनसैचुरेशन होगा तब वहां पे एडिशन रिएक्शन होगा। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यह एडिशन रिएक्शन होता है, और एडिशन रिएक्शन होके हमें एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो बस ये पॉइंट था कि व्हेन हाइड्रोकार्बन लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट फॉर्म्स सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। When unsaturated hydrocarbons react with chlorine, it gives addition product. Now two examples मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट CH4। CH4 यहाँ पे कैसा है? सैचुरेटेड है। तो CH4 को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें प्लस Cl2, तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा एक क्लोरीन से, यानी मिलेगा CH3Cl प्लस ए हाइड्रोजन और रिमेनिंग क्लोरीन मिलाएगा HCl। सेकेंड, इन इथेन डबल बॉन्ड तो आ गया यहां पे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? तो क्लोरीन रिएक्ट हुआ, पाई बॉन्ड क्लीवेज होगा। दो बॉन्ड में से एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। पाई बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन अटैच हुए, तो यहां पे बना CH2CH2 फिर Cl और Cl। तो ये प्रोडक्ट को कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट, और ऊपर वाली प्रोडक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। 6 नंबर की प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट हुई। 7 नंबर की प्रॉपर्टी एक ऑरली बोल देता हूं कि जो क्लोरीन वाटर है वो येलो कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अगर उसको मैंने ऐसे हवा में खुला छोड़ दिया तो वो कन्वर्ट होगा HCl और HOCl। HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, और वो दोनों के कारण यहां पे क्लोरीन वाटर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। वो टेक्स्ट बुक में आपको एक पॉइंट पूरा दिया है। एक ब्लीचिंग एजेंट का पॉइंट समझा रहा हूं। तो देखो HCl, सॉरी देखो Cl, क्लोरीन मॉइस्चर वाला होगा। क्लोरीन जो है वो मॉइस्चर कंटेनिंग क्लोरीन होता है, वो एक्ट करता है ब्लीचिंग एजेंट। कैसे ब्लीचिंग एजेंट बनाता है? देखो पहले तो दोनों के बीच रिएक्शन, HCl 2 मॉलिक्यूल्स और ये ऑक्सीजन, और ब्लीचिंग एजेंट में हेल्पफुल होता है ये ऑक्सीजन। और कोई भी कलर सब्सटेंस होगा, वो कलर सब्सटेंस में अगर हमने गीला क्लोरीन गैस पास किया, समझो प्रॉपर्टी को कि ये सब्सटेंस कलर्ड है, इस पे कलर है, अगर इसके ऊपर मैंने गीला क्लोरीन गैस पास किया तो इनका ऑरेंज कलर चला जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कलर कंपाउंड प्लस ये वाला ऑक्सीजन, इट गिव्स अनकलर। उनका कलर क्या करता है? निकाल देता है। और यही प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्लीच करना। ब्लीच यानी इंप्योरिटीज को निकालना, कलर के पार्टिकल्स को निकालना। तो ये थी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस, और नीचे आपको दिए हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसको पढ़ना ही है, उसमें कोई समझने की बात नहीं है। 3 जो क्लोरीन के पॉइजनियस गैस है उनको अच्छी तरह से याद करना। एक मस्टर्ड गैस है, एक टीयर गैस है। मस्टर्ड गैस और टीयर गैस मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं। फिर एक फोस्जीन, ये तीनों 3 गैस के फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।